تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے میدان محشر کی ہولناکیاں۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ جو زندگی دی ہے وہ ہمیشگی والی زندگی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم سب کو مرنے کے بعد قبر میں جانا ہوگا، اور پھر قبر کی جو عالم برزخ کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو گزارنے کے بعد پھر قیامت کا سامنا کرنا ہوگا، جو ہم اور آپ پچھلے جمعہ قیامت کے تعلق سے آپ لوگوں نے بخوبی سنا۔ اور پھر قیامت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میدان محشر قائم ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور اچھے برے عملوں کا حساب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کو قائم کرے گا۔ ہم اور آپ اس دنیا میں جو عمل کر رہے ہیں، چاہے اچھے عمل کر رہے ہیں یا پھر برے عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر اسی لیے قائم کرے گا تاکہ انسانوں کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دے کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے اور کتنے برے کام کیے۔ نیکی کرنے والوں کو نیکی کا پورا بدلہ ملے گا، اور اسی طریقے سے جو شخص اس دنیا میں برے کام کر رہے ہیں، برا عمل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بھرپور بدلہ دے گا جو انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین اسی لیے میدان محشر کو قائم کرے گا۔ لیکن میدان محشر کی تپش بڑا خطرناک ہوگا۔ لوگ وہاں ایک دوسرے کے نظروں سے چھپتے پھریں گے، لوگ ایک دوسرے کے نظروں سے بھاگیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مدد کا مطالبہ کر دے، کوئی نیکی نہ مانگ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میدان محشر میں قیامت کے دن ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بھاگے گے، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنے بیوی سے بھاگے گی، اور پھر اسی طریقے سے ہر شخص اپنے اپنے فکر میں ہوگا، ہر شخص اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا باپ یہ دنیا کے اندر تھا، میرا چہیتا بیٹا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں یہ مدد کا مطالبہ کر دے، ہم سے نیکیاں نہ مانگ دے۔ میرے بھائیوں، میدان محشر بڑا خطرناک ہوگا، اس لیے ہم سب کو میدان محشر کی تیاری اسی دنیا میں ہی کر لینا چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، القاریہ، کھڑکھڑانے دینے والی، مل قاریہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی، وما ادراک مل قاریہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم انسانوں کو دیکھو گے وہ پتنگے اور پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کا منظر اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ قیامت کے دن یہ 6 فٹ کا انسان، ہم اور آپ جو 6 فٹ 5 فٹ کے جو ہم اور آپ ہیں اس دنیا کے اندر اکڑ کر کے چلتے ہیں،
इस दुनिया के अंदर तकब्बुर व घमंड के साथ इस दुनिया के अंदर चलते हैं। हम और आप इतना तकब्बुर करते हैं मेरे भाइयों, ये तकब्बुर करके, ये अकड़ करके हम और आप जो चल रहे हैं, हम और आप ना जमीन को फाड़ सकते हैं ना ये आसमान को चीर सकते हैं। क़यामत का मंजर ऐसा मंजर होगा कि यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन देखोगे इंसानों को कि ये पतंगे और परवानों की तरह उड़ रहे हैं। वतकूनुल जिबालु कल अहिनिल मनफूस, हम और आप जो देख रहे हैं इतने बड़े बड़े पहाड़ जो हम और आप देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पहाड़ को जमीन के सुतून को बनाया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन के अंदर ये पहाड़ को न बनाए होते तो जमीन अपनी जगह पर टिकी हुई नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को अपने जगह पर कायम रहने के लिए पहाड़ को बनाया हुआ है। लेकिन कयामत के दिन हम और आप इतने जो बड़े बड़े पहाड़ को देखते हैं जिस पर चढ़ना इम्पॉसिबल नजर आता है, जिस पर चढ़ना नामुमकिन नजर आता है, मेरे भाइयों कयामत के दिन ये पहाड़ धुनी हुई रंगीन ऊन की तरह उड़ रहे होंगे। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जो इस दुनिया के अंदर अच्छे अमल किए हुए होंगे, जो इस दुनिया के अंदर नमाज रोजे पाबंदी के साथ किए हुए होंगे, जो इस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह तबारक व तआला को याद किए हुए होंगे, उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जब मैदान महशर में नेकी और बदी तोली जाएगी, हमारी पूरी जिंदगी का जब हिसाब व किताब होगा, जब नेकी और बदी तोली जाएगी, फिर हमारे नेकियों का पलड़ा अगर भारी हो गया, जब हिसाब व किताब होगा, नेकी और बदी को जब तोली जाएगी, नेकियां हमारे ज्यादा हो जाएगी और गुनाह हमारे कम हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगी को ऐसा कर देगा कि हम और आप चैन और सुकून के साथ जिंदगी गुजर बसर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, वो चैन और सुकून की जिंदगी गुजर बसर करेंगे। लेकिन वही अगर हम और आप इस दुनिया में अच्छे अमाल नहीं किए, अपनी जिंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं गुजारी, अगर हमने और आपने इस दुनिया के अंदर मनमानी जिंदगी गुजारी, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, बस जब नेकी बदी तोली जाएगी और जिन्होंने इस दुनिया के अंदर अच्छे अमाल नहीं किए, उनकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे। उसके हक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, तो उसके लिए हाविया है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमा अदराका मा हिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या मालूम कि ये माहिया क्या है। वमा अदराका मा हिया, ऐ नबी आपको क्या मालूम कि ये माहिया क्या है। नारुन हाविया, ये जहन्नम की तेज धुंध आग है। माहिया हाविया जो है ये जहन्नम की तेज़ो तुंद आग है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स के लिए ये जहन्नम की आग को तैयार करके रखा है जो इस दुनिया के अंदर मनमानी जिंदगी गुजारता है, जो इस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह तबारक व तआला को राजी नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम की आग को तैयार करके रखा है। उस दिन हमारे नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा अगर हम और आप अच्छे अमाल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, मैदान महशर में हमें पछता करके कोई फायदा नहीं होगा, वहां पछता करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए इस दुनिया में अच्छे अमाल करें ताकि मैदान महशर में हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन
दूसरी जगह सूरह हाका के अंदर इरशाद फरमाता है, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीने, जिसका नामाए आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिए जाएंगे, मोमिन को उसका नामाए आमाल उसके दाहिने हाथ में देंगे। वो अपने नामाए आमाल को पा करके वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो लोगों से कहेंगे वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीने फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। वो अपने नामाए आमाल पाने के बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। वो खुद भी पढ़ेंगे और दूसरों को भी दिखलाएंगे, कहेंगे कि ये मेरा नामाए आमाल है, मैं जानता था कि मुझे इसका बदला मिलने वाला है, इसीलिए मैंने दुनिया में अच्छे अमाल किए थे, नमाज रोजे का पाबंद थे, सदका व खैरात कसरत से क्या करते थे, क्योंकि मुझे यकीन था कि मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका बदला देगा। इसीलिए मोमिनीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका नामाए आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दाहिने हाथ में देगा। मोमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे जब उसका नामाए आमाल उसके हाथ में पड़ेगा। वो कहेगा कि मैं दुनिया के अंदर मुझे यकीन था कि जो जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है ये फना हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, फिर हमें हिसाब और किताब देना होगा, मुझे यकीन था, इसीलिए हम दुनिया के अंदर अच्छे आमाल किए थे, जिसका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने आज मुझे ये दिया है, हमारे नामाए आमाल को दाहिने हाथ दिया है। वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है, वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमाले, काफिर को उसका नामाए आमाल उसके पीठ पीछे बाएं हाथ में दिया जाएगा। काफिर लोग जब अपने नामाए आमाल को देखेंगे वो बहुत ज्यादा अफसोस करेंगे, कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश मेरा नामाए आमाल मुझे ना दिया गया होता, मैं ना जानता कि मेरा हिसाब क्या होने वाला है, मेरी जो मौत दुनिया में आई थी मेरे लिए फैसला कुन होती, या लैतहा कानतिल काज़िया, जो मेरी मौत दुनिया में आई थी वो मेरे लिए फैसला कुन होती। जो दुनियावी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो दिया था वो खाए पिए मर जाए, कोई हिसाब उसाब नहीं होता तो मेरे लिए अच्छा था। या लैतहा कानतिल काज़िया, काफिर लोग उस वक्त अफसोस करेंगे कि काश मेरा नामाए आमाल मुझे ना दिया गया होता, मैं ना जानता कि मेरे आगे पीछे क्या होने वाला है, मेरी जो मौत दुनिया में जो आई थी मेरे लिए फैसला कुन होती। मा अगना अन्नी मालिया, आज मेरा माल मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है। हम और आप ये जो मेहनत और मशक्कत कर रहे हैं, माल हासिल कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में ये हमारा माल काम आने वाला नहीं है। हमारी वही नेकियां, वही अमल कल क़यामत के दिन काम आएंगे जो हमने अल्लाह और उसके खुशनुदी के लिए इस दुनिया के अंदर किए हुए होंगे। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए इस दुनिया के अंदर हम और आप अच्छे अमाल करते हैं, कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अच्छा बदला देगा। लेकिन अगर हम और आप मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, क़यामत के बारे में नहीं सोचेंगे, मैदान महशर के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर कल मैदान महशर में हमें अफसोस करना होगा। हम और आप वही कहेंगे, या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश के मेरा नामाए आमाल मुझे ना दिया गया। लेकिन उस वक्त अफसोस करके कोई फायदा नहीं होगा। और मैदान महशर में धूप इतनी तेज होगी कि सूरज को अल्लाह रब्बुल आलमीन 1 मील के फासले पर कर देगा। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, रावी हदीस बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सूरज को 1 मील के फासले पर कर देगा। रावी हदीस कसम खा करके कहते हैं कि अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि ये 1 मील जो बयान किया गया है ये ज़मीनी मुसाफत है या फिर वो सलाई जिससे आंखों में सुरमा लगाया जाता है, जो इतना छोटा रहता है, वो सलाई मुराद लिया गया है, या फिर जमीनी मुसाफत जो 1 मील 2 मील जो होता है वो मुराद लिया गया है।
सूरज को नजदीक अल्लाह तबारक व तआला कर देगा, लोग अपने आमाल के मिकदार पसीने में गर्क होंगे, लोग पसीने में अपने आमाल के मिकदार गर्क होंगे। कोई पसीने में तैर रहा होगा, कोई घुटनों तक होगा, कोई टखनों तक होगा। जिन्होंने जिस तरीके से इस दुनिया के अंदर आमाल किए हुए होंगे, उसी हिसाब से कल क़यामत के दिन वो पसीने में गर्क होंगे। इतनी तेज धूप, लेकिन उस दिन वहां कोई साया ना होगा, मैदान महशर में कोई साया ना होगा सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे जो साया होंगे वही साया होगा, उसके अलावा कोई साया ना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़यामत के दिन, जिस दिन अर्श के अलावा कोई साया ना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 7 किस्म के लोगों को अपने साए तले जगह देंगे, जिस दिन उसके अलावा कोई साया ना होगा। उनमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इमामुन आदिलुन, ऐसा हुक्मरान जो हमेशा उन्होंने कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला किया होगा, जिसने अपनी सल्तनत को, जिसने अपनी हुकूमत को बखूबी अंजाम दिया होगा, पूरी अमानतदारी के साथ हुकूमत चलाया होगा, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि तआला। दूसरा वो शख्स होगा जिन्होंने जवानी की इबादत में, जिन्होंने जवानी के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, जिन्होंने जवानी के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की, अपनी मनमानी जिंदगी नहीं गुजारी। जवानी के वक्त में इंसान के आगे सारी चीजों की मोहब्बत होती है, दुनियादारी का टेंशन होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है, अगर वो अपनी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देगा। दूसरा, तीसरा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा। यानी ऐसा इंसान जब एक नमाज पढ़ करके निकलता है, जोहर की नमाज पढ़ करके निकलता है, उसके दिल में यह ख्याल रहता है कि अभी थोड़ी देर के बाद असर की आजान हो जाएगी, हमें थोड़ी देर के बाद फिर असर की नमाज पढ़ने जाना होगा। अगर हम दुनियादारी में मस्त हो जाएंगे, अगर हम कहीं दूर चले जाएंगे, अगर हम काम काज में मशगूल हो जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नमाज कज़ा हो सकती है। तो जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देगा। 3 और चौथा इंसान वो होगा, चौथे किस्म के लोग वो होंगे, वरजुलान तहाबन फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। चौथा इंसान वो होगा जो 2 आदमी खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मोहब्बत करता है, और फिर वो जब भी एक दूसरे से मिलता है अल्लाह के लिए मिलता है, और जब भी एक दूसरे से जुदा होता है तो वो भी अल्लाह ही के लिए जुदा होता है। ऐसे लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। 4 हो गया। 5वां इंसान वो होगा, 5वीं किस्म के लोग वो होंगे, वरजुलुन दाअतहु इमरातुन ज़ात मनसबिन व जमालिन। 5वां वो इंसान होगा जिसको एक खूबसूरत हसब नसब वाली औरत जो गुनाह दावत देती है, जो गुनाह की तरफ बुलाती है, हराम काम करने की तरफ बुलाती है, लेकिन एक से वक्त में जो इंसान ये कह देता है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, हमारे सीने में अल्लाह का खौफ है, चाहे इस दुनिया के अंदर कोई देखता हो या ना देखता हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर देखने वाला होता है। तो जो शख्स ऐसे मौके पर अगर वो ये कह दे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। 5 हो गया।
छठा इंसान वो होगा वरजुलुन तसद्दक़ु बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा। पांचवा वो इंसान होगा जिन्होंने सदका किया और उस सदके को छुपा लिया। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, यहाँ तक कि उसके दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है बाएं हाथ को पता नहीं चला है। यानी जिन्होंने चुप के सदका किया, अल्लाह की राह में सदका किया, अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह देंगे। 6 हो गया। 7वां इंसान वो होगा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन, जिन्होंने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा, जिसने रात में उठ कर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया होगा, अपने गुनाहों की माफी मांगा होगा, नवाफिल का एहतमाम किया होगा, और अपने गुनाहों की माफी मांगते मांगते अगर उनकी आंखों से आंसू निकल गया हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, अगर अल्लाह को याद करते करते, अगर अपने गुनाहों की माफी मांगते मांगते, अगर अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते हुए अगर उनके आंख से आंसू निकल आए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अपने साए तले जगह देंगे। 7 किस्म के लोग होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देंगे, जिस दिन अल्लाह के अर्श के साए के अलावा और कोई साया ना होगा। मेरे भाइयों, हम और आप गौर व फिक्र करें, सोचें उन 7 खुश नसीब लोगों में हम और आप हैं या नहीं। उन 7 खुश नसीब लोगों में हम और आप शुमार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचे, वो खुश नसीब लोग क्या जिन्होंने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा। हम और आप तन्हाई में याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने अदलो इंसाफ के साथ हमेशा काम लिया होगा। हम और आप ये सोचें कि हम और आप अदलो इंसाफ से काम लेते हैं या नहीं लेते हैं। जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ होगा, हम और आप ये सोचें कि हमारा दिल मस्जिद से लटक रहा है या नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, गौर व फिक्र करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस दिन अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उस दिन उस साए के अंदर हमें भी जगह नसीब अता फरमाए। उस दिन हमें भी उस साए के तले जगह नसीब फरमाए। और मेरे भाइयों, उस दिन हश्र की चिलचिलाती धूप में हमें खड़ा रहना होगा जब तक हिसाब व किताब ना हो जाए। जब तक हिसाब व किताब नहीं होगा, हम और आप अपने कदम को वहां से हिला नहीं पाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तज़ूलु क़दीमा अबदैन यौमल क़ियामत हत्ता युसअलु अन अर्बा, जब तक कि एक इंसान 4 सवाल का जवाब ना दे दे, अपने पाँव को हिला नहीं पाएंगे। जिस दिन सूरज 1 मील के फासले पर होगा, लोग गर्मी की तपिश से परेशान होंगे, सूरज की गर्मी से लोग परेशान होंगे। ऐसे वक्त पर जब तक एक इंसान 4 सवाल का जवाब ना दे दे, अपने कदम को हिला नहीं पाएगा। उनमें से पहला सवाल ये होगा अन उमरिही फीमा फना, तुमने अपने उम्र को कहाँ गवाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको ये जो उम्र जो दी है, ये जो जिंदगी जो दी है, इस जिंदगी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा। मेरे भाइयों, इस जिंदगी को गनीमत समझे और अल्लाह के लिए अपने जिंदगी को गुजारे। दूसरा सवाल होगा वन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारी। इस हदीस के अंदर देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला पूरी जिंदगी के बारे में सवाल तो करेगा ही करेगा, लेकिन अलग से सवाल होगा वन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपने जवानी को कहाँ गुजारी। ये जवानी की कितनी अहमियत है मेरे भाइयों। यहाँ पूरी जिंदगी का सवाल हो रहा है, उस पर जवानी आ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अलग से सवाल किया जा रहा है वन शबाबिही फीमा अबला, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारी। और फिर यहाँ दूसरी हदीस जो इससे पहले जो बयान किया, दूसरी हदीस
دیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے. ان میں سے یہ ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جنہوں نے جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا ہوگا. تو جوانی کی کتنی اہمیت ہے. جوانی کے وقت میں انسان کے آگے ساری چیزوں کا ٹینشن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے. تیسرا سوال یہ ہوگا مال کو تم نے کمایا کہاں سے تھا؟ کمائی کرنے کا طریقہ جائز تھا یا ناجائز تھا؟ اگر جائز ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں جائز ہے تو پھر اس کا حساب دینا ہوگا. کمائی کرنے کا طریقہ کیا تھا اور خرچ بھی کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ خرچ کہاں کیا تھا؟ جائز جگہوں پر خرچ کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ اگر جائز جگہوں پر خرچ کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں، تو پھر تو یہاں دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر اچھے کاموں میں اگر ہم اور آپ خرچ نہیں کیے ہوئے ہوں گے تو پھر وہاں ہم اور آپ حساب نہیں دے پائیں گے. اور پھر ایک چیز یہ بھی جان لیجئے کہ جب انسان کا جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ ہمارے موت کے وقت کو تھوڑا سا مؤخر کر دیجئے، تھوڑا سا ٹال دیجئے. کیا کرو گے؟ فاصدق واکن من الصالحین. اے اللہ ہم صدقہ کر دیں گے اور سارے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں آخر گناہگار لوگ، ایک نکتہ ہے تھوڑا دھیان سے سنیے، آخر گناہگار لوگ یہ کیوں کہیں گے کہ اے اللہ تھوڑا سا ہمیں وقت دے دیجئے، ہم صدقہ کر لیں گے، پھر ہماری موت آ جائے کوئی ٹینشن نہیں. آخر مرنے والے شخص یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہم حج کرنے چلے جائیں گے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے ہم عمرہ کرنے چلے جائیں گے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، یا پھر تھوڑا سا وقت دے دیجئے ہم اچھے اعمال کر لیں گے. یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ آخر یہ اچھا کیوں ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہم صدقہ کر دیں گے اور سارے لوگوں میں سے ہو جائیں گے؟ کیونکہ انسان کو جب موت واقع ہوتی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ صدقہ کرنے والوں کا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑھا کر کے رکھا ہے. جو شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا کیا تیاریاں کر کے رکھی ہے. اسی لیے مرنے والے شخص یا مرنے کے بعد وہ شخص اچھا کریں گے اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیجئے، ہم دنیا میں جائیں گے، صدقہ کر دیں گے اور سارے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، پھر ہمیں موت دیجئے، کوئی ٹینشن نہیں. میرے بھائیوں تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بتاؤں گا میدان محشر کے بعد ہم سب کو کہاں سے گزرنا ہوگا. پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا اور پھر میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیں گے، پھر اس سے اپنے امتیوں کو وہ پلائیں گے. پل صراط سے گزرنا ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ کس نے کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے. پھر جنتی کے ساتھ کیا ہوگا، جہنمی کے ساتھ کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعے کو بتلاؤں گا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس رہتی دنیا میں ہی میدان محشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو میدان محشر کی گرمی اور تپش سے بچا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جس دن قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.